بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ایک بہت بڑی آپ کے اس فیورٹ چینل کے اوپر ہم نے ایک سیریز ہے ہماری الحمدللہ ایسی خبروں کی کہ جو شاہ جی نے خبریں دیں، جو میں نے اپنی کو تھوڑی بہت مطلب کہ جرنلسٹک اور سورسز سے خبریں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ الحمدللہ وہ بھی خبریں جو ہے وہ درست ثابت ہوئیں، اور شاہ جی کے ساتھ تو پھر ہم جو ہے نا یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف اگر میں یہ کہوں، بلکہ سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں نہ ریویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک خبر ہم نے دی تھی کہ اس سیریز کے بعد جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جیسن گلسپی بھی وہ چھوڑ جائیں گے، اور پھر اس سے پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ گیری کرسٹن جائیں گے تو عاقب جاوید کو جو ہے ان کو بنا دیا جائے گا، ہیڈ کوچ بنا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد لیکن اس میں ایک سیریز نکالی گئی، وہ کیوں تھی وہ بھی ہم نے آپ اپنے پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے اس فیورٹ چینل کو جو ہے وہ اپنا سبسکرائب کر لیں، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خبر شاہ جی کے ساتھ یہی گفتگو ہوگی کہ انگلینڈ نے یہاں پہ آنا تھا تو ہمارے ایک سلیکٹرز میں سے ایک بڑا رسپیکٹیبل نام جو نا وہ سابق کپتان محمد یوسف، وہ جو ہے وہ خدا حافظ کہہ گئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کو جانا تھا آسٹریلیا میں، اور بہت اہم سیریز تھی، ٹھیک ہے۔ این وقت پر جو ہے وہ گیری کرسٹن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا، اور اب جو ہے وہ سیریز شروع ہو چکی ہے۔ اور سیریز کے دوران جب ٹیسٹ کی جب بات آنی تھی تو اس امتحان میں فیل ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کم از کم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر وڈرا کر کے، اور جیسن گلسپی صاحب بھی جو ہے نا وہ اس کا پارٹ اور پارشل نہیں رہے ٹیم سکواڈ کا، لیکن یہ ہے کہ یہ عبوری طور پر جو ہے وہ جس طرح پہلے ریڈ بال کی دی گئی تھی، اب وائٹ بال کی بھی ان کو پہلے وائٹ بال کی دی گئی تھی، اب ریڈ بال کی بھی ان کو عاقب جاوید کو دی جائے گی۔ عاقب جاوید کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں، وہ کیا ہیں وہ ہم ابھی اس ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے۔ ونس اگین بہت شکریہ سر آپ کا، اور فرمائیے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ خاموشی کس طوفان کا جو ہے نا وہ پیش خیمہ ہے، تو یہ تبدیلیاں کس جو نا وہ بڑی خبر کا ایک پن پوائنٹ ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے بتایا اس چینل کو جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے، ہم نے سب سے پہلے بمراہ کا تھرو کا کہا۔ آج آل اوور ورلڈ جو نا اس کو تھرو کا ہو گیا، اور وہ پکڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے جو آسٹریلینس بڑے بگ گنز تھے وہ کہتے ہیں یہ تھرو کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا، بعد میں سب لوگ کہتے ہیں جی میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سب غلط کرے، میں نے ایکشن تک اس کا بتایا ڈیفینیٹلی۔ دوسرا آپ نے گلسپی کا کہا تھا، گلسپی پہلے کرسٹن گیا، اب گلسپی بھی جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وائٹ پیپلز ہوتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ہماری سائیکی دیکھتے ہیں اور ہم سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ ٹیم سے کی فارمیشن سے، ٹیم کی پرفارمنس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے غرض نہیں ہوتی، ایک تو یہ ہمارے گورے وائٹ میں ہم سے ویسے ہی نہیں شامل ہو سکتے، ہماری مذہب سے ان کو بڑی وہ ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے یہاں شابے اور سور چلتے ہیں ان کے، ہم لوگ جو ہیں اس سے بہت زیادہ دور ہیں، ہمارے تو قریب یہ چیز آتی، تو پھر یہ لوگ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ کو پتا جو رنگینیاں ان کی ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ اب 1 مہینے کے لیے آتے تھے، اب جو ہمارے چیئرمین صاحب نے پیسوں سے لاد دیا تھا جب، اور کسی کے کہنے پہ، وہاب ریاض کے کہنے پہ یہ ساری ڈیل ہوئی، کتنے % پہ ہوئی، کیسے ہوئی، ہمیں اس چیز کا غرض نہیں، نہ یہ مطلب یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن آپ نے گورے بنا کے خود ہی اپنے مقصد کو خود فیل کیا چیئرمین صاحب نے، کہ میں نے بہت بڑی غلطی تھی۔ کون سی غلطی کی ہے؟ ایک غلطی بتاؤں تو چیئرمین صاحب کی غلطیوں پہ غلطیاں آ رہی ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب سنا یہ کہ T20 جو آپ کا چیمپئنز ٹرافی ہے، جے شاہ صاحب نے ایک نیا نکتہ چھوڑا ہے کہ T20 فارمیٹ پہ ہوگی۔ یہ بھی ہم آج ریویل کر رہے ہیں بات کو کہ T20 فارمیٹ پہ ہوگی۔ تو ہماری جو ہے نمائندگی بہت کمزور ہے، چیئرمین صاحب کو پتہ نہیں ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، مطلب آربیٹریٹر بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ خبر سب سے پہلے منظر عام پہ لائے تھے کہ آج جو گلسپی ہے وہ بھی چلے جائیں گے، گلسپی بھی چلے گا، میرے خیال میں کیوریٹر صاحب بھی چلے جائیں گے۔ نہ تو انہیں پچ بنانے کا پتہ، نہ انہوں نے پچ بنائی کبھی، وہ آئے اور پیسے کھا کے چلے گئے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کروں گا اس جگہ پہ، کیا نیب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ اسٹیڈیم میں کتنا پیسہ لگا؟
आप पूछने का हक रखती है कि इन्हें कितना कितना पैसा दिया इन्हें गौरव कोचेस को? क्या पूछने का हक रखती है कि ये पैसा मेरी क्लब का, आपकी क्लब का, छोटे छोटे मजलूम क्रिकेटर का पैसा कैसे खाया जा रहा है? क्या CSP ऑफिसर्स जो वहाँ हैं, सिविल ऑफिसर्स हैं, उनको रखने वाला कौन है, किसके अप्रूवल से आए? क्या ये रातों रात जो बोर्ड में भी तब्दीली होती है, इसका पूछने वाला कौन है? क्या इनकी तनख्वाहों का तयन कौन करता है? क्या कितने कितने लाख में ये आते हैं, इसका कौन पूछने वाला है? तो मेरे ख्याल में नैब क्या इस चीज़ पे हरकत में आएगी या नहीं आएगी? जी सर नैब का तो इसमें दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। जो इमीडिएटली जो अथॉरिटी थी, जो एक थ्रेट थी, जो एक तलवार लटकी हुई थी कि मतलब कि इनकी फाइनेंसिस को, बोर्ड के फाइनेंसिस को, जो इनकी मतलब कि जो है शाह खर्चियाँ नहीं अच्छा शाह खर्चियाँ, सॉरी जी, शाह खर्चियाँ जी, जो इनकी शाह आदम खर्चियाँ जो इनकी शाह खर्चियाँ हैं, फिर उसके बाद जो इनकी ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के जो मतलब के हैं ऑफिसर्स, उनको अकोमोडेट करने का, किसको राजी करना का जो है ना वो है। तो वो 1 2 4 मतलब कि वो उसकी जो वजारत थी, हाँ जी, वो इसमें थोड़ा सा मतलब कि करती थी, ठीक है, और अब उसको भी इंटरप्रोविंशियल से होती है, बैनुसूबाई राब्ता IPC, ठीक है, तो वो उसको भी बीच में से जो ना अपना पत्ता काट दिया। मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने सबसे पहले डिमांड ये रखी कि भाई इसको पहले छुट्टी कराई जाए, ताकि जो है ना बीच में उनको पूछने वाला कोई ना। हाँ तो अब ये पता नहीं है किस तरह की आज़ादी कोई बंदा चाहता है, हालांकि जब आपके ऊपर एक देखिए निज़ाम कुदरत का है। बिल्कुल सही कहा, वाह 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 जी, बिल्कुल ठीक बात कि जज़ा और सज़ा का अमल जब तक नहीं है सर, पूरी दुनिया में कोई सिस्टम चल नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात किया। तो रूल्स जो है ना, रूल्स इसी के ऊपर तो बनते हैं, कवानीन इसी पे बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मेरा ख्याल है कि इसमें तो एनीवेज हम वापस आ जाते हैं कि बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, और ख़ास तौर पर हम एक सवाल को आगे लेके चलते हैं कि आकिब जावेद के ऊपर इतनी नवाज़ियात, और फिर उसके बाद ऐसी नवाज़ियात पहले भी होती रही हैं, मिसबा पे हुई, फिर उसके बाद अपना वहाब रियाज पे हुई, फिर उसके बाद आकिब जावेद पे हुई, लेकिन आकिब जावेद का उन दोनों से पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। आपको क्या लगता है? हम उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं, और एक जो ना वो ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्किंग वर्कर जो ना वो देखते हैं, लेकिन जब आप बर्डन उसके ऊपर इतना डाल देते हैं, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने क्विट नहीं किया सिलेक्शन कमेटी से, तो मतलब कि वो जो डुअल, बल्कि अब तो 3 दिन ओहदे उनके पास ट्रिपल हो गए जी। हाँ जी, तो आप इसको किस तनाजुर में? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें, सबसे बड़ी बात है, एक शख्स अपनी बनाई हुई टीम को अपने सामने शिकस्त दिखाते देखता है, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि मैंने ये टीम में ये गलत लड़का डाला, ये गलत डाला, ये गलत डाला, तो उसका जो कॉन्शियस होता है वो अंदर से कहता है कि एक चीज़ गलत की गई है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक सिलेक्टर जो खुद कोच है उसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? या कोचिंग में चेक करेंगे उसको, या उसकी सिलेक्शन में करेंगे। अब वो बंदा एक ऐसा था कि जो यंगस्टर्स के लिए ही वॉज वेरी फ्रूटफुल, वो बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर को समझा सकता है, बड़ा कुछ उसका दिमाग बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा वो उसको मैं समझता हूँ कोचिंग में, मैं बचपन से उसको जानता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है उसका मिजाज जो है ना वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नज़र आ रही है, ट्रेमलिंग नज़र आ रही है, पहिया थोड़ा हिल के चल रहा है, या तो पंक्चर हुआ है, हवा कम हो गई है, या उसमें बैलेंस जो व्हील बैलेंसिंग ख़त्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ आकिब जावेद अगर इस तरह का स्टेप लेगा तो आकिब जावेद भी उसी जगह में खड़ा होगा जिसमें माजी में खड़े हुए। आपकी बड़ी अच्छी बात है, और अब बड़ा अच्छा है कि जिस तरह नवाजा गया था मिसबा को, और आज वो क्रिकेट के आज तक हम वो ज़ख्म चाट रहे हैं जो मिसबा के हाथ के दिए हुए हैं, वो जो लोग प्लेयर उसने खिला दिए थे, वही प्लेयर आपके सामने है। अब हम जो है ज़ख्म वो फिर ना चाटे, क्योंकि क्रिकेट आज उस जगह पर पहुँच गई है, ना तो क्लब क्रिकेट रही है, ना रीजनल क्रिकेट रही है, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट रही है। रीजनल क्रिकेट के लोग जो है वो कहते हैं लगा है क्रिकेट का दरबार देखो, रीजनल क्रिकेट के उहदेदार देखो, तो उनके दरबारी बैठे होते हैं, उनकी मतलब उनकी हाँ मिलाए जाते हैं, रोज़ तोहफे होते हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत दूर चले गए। अगर आकिब जावेद ने यही काम करना है तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी क्रिकेट ख़त्म करके यहाँ पे एडहॉक लगा के नए सिरे पे यहाँ पे क्रिकेट प्रमोशन करें। दूसरी चीज़ है, आकिब के साथ जो सिलेक्टर्स हैं अजहर अली और असद शफीक, वो तो बिल्कुल ऐसे जुम्मा जंज के नाल 31 लाख ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसके साथ एक और सिलेक्टर है अलीम डार इज द बेस्ट पर्सन। आपकी टीम जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जीती, मैंने सुना है बहुत बड़े खिलाड़ी से जो उसने कहा मुझे नाम ना लीजिएगा, का सारा ही अलीम डार का है।
पिचेस भी उसने बनवाई, टीम भी चेंज करी, उसी के एक्शन से हुआ। तो अलीम डार या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए या ये टीम को तब्दील कर दें। अगर आप भी यही काम करेंगे, इंतहाई आपका करैक्टर साफ सुथरा है, एक दुनिया के बेस्ट एम्पायर्स में थे, 3 दफ़े आपने ICC अवार्ड जीता, और आप वो एम्पायर्स थे जिसके ऐसे उंगली निकलती, लोग पूछते थे कैसे आ जाता है आपका आउट, और कभी चैलेंज नहीं हुआ। तो आपको अब हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर इस टीम के अंदर जो है वो फौरी इसकी ओवरहॉल करें, बाबर आजम को बाहर बिठाए, और जो ये शुरते गए ना साथ हारिस रोफ फलाना रोफ, ये क्रिकेट से कोई गरज नहीं, ये बस कमरे में बैठे हैं, इसे करते हैं, झुकते कर ली, हंस लिए, उसको हंस लिया, उसको कर लिया, अंदर आ गए। हमें मुग़ल आज़म नहीं चाहिए, हमें आधे आज़म नहीं चाहिए, हमें वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, मतलब वज़ीर आज़म इस क्रिकेट के अंदर, वो पाकिस्तान का इस वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, हमने सदर नहीं चाहिए क्रिकेट के। हमें सर थोड़ी सी इसमें अगर इजाजत दें तो, हाँ जी, हाँ ड्यू रिस्पेक्ट, वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, आपका जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अच्छा, इस क्रिकेट में नहीं चाहिए, इस क्रिकेट उनका जो है ना प्रेशर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, चाहिए। क्रिकेट को तो आजाद होना चाहिए, आजाद होना की स्पोर्ट्स अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। Yes, of course. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अरे वज़ीर आज़म साहब आपसे भी बात कर रहे हैं कि आप इस क्रिकेट को आज़ाद कर दें, बिल्कुल अपने नीचे ना, अभी थपकी दी है परसों उन्होंने मोहसिन नकवी को, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, मतलब खाया जब बर्बाद। तो आप भी अल्लाह के सामने जवाब दें, मोहसिन नकवी भी फौरी तौर पर इसको आज़ाद कर दे, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तय, मैं आपको बताऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, जिसमें क्लब का एक खिलाड़ी भी आज़ाद होगा, वो भी बात करने का अहल होगा, खड़े होकर बात करेगा मेरे साथ ज्यादती हुई है, वो इस तरह का आइन होगा जिस तरह मैं पिसा हुआ हूँ ना आपके सामने बैठा, और आपको मेरे प्रेसिडेंट थे जब मैं लाहौर का मैनेजर था, मैं आपको बताऊंगा जब मियाँ साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता, इसी तरह इमरान खान के साथ भी ऐसी ताल्लुकात थे, लेकिन मैं ये पॉलिटिकल हब है और यहाँ पे सियासत लेने नहीं आए, हम क्रिकेट की सियासत को क्रिकेट से पाक करना चाहते हैं, क्रिकेट के अंदर से गंद को क्रिकेट से पाक करना चाहते हैं, क्रिकेट के अंदर से जो गटर के कीड़े उन्हें निकालना चाहते हैं, क्रिकेट को हम पाक करना चाहते हैं, एक जेन्युइन लड़के को हक दिलाना चाहते हैं, जेंटलमैन गेम हो, जेंटलमैन गेम में जैसे माजिद था, इमरान था, ज़हीर अब्बास था, मियां दाद था। अच्छा जी, अब आप जो है मतलब कि अगली सीरीज जो है, अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बहुत सारी सियासत हो रही है, फिर आपको क्या लगता है कि जो आकिब जावेद हैं उनको जो है उनका रोल क्या देख रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह ये देखें, बेसिकली तो वो एक उन्होंने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, फिर उसके बाद एक बड़ा यानी कि प्ले डेवलपमेंट के ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च है, बहुत सही बात है। लेकिन ये है कि जो मतलब कि जो कोचिंग की है ना, कोचिंग वो प्ले डेवलपमेंट का काम नहीं है, क्योंकि जो इस स्टेज पे आके ना सुपरस्टार्स का, बहुत अच्छी बात आपने हाँ, सुपरस्टार की जो कोचिंग है ना, वो तो सर आप उनको ट्यून अप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि आकिब जावेद की जो राइट जॉब फॉर द राइट मैन वाली है ना, वो तो प्ले डेवलपमेंट के ऊपर उनकी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि उनकी जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म भी है, और प्लस जो है उनका जो है ना रिसर्च वर्क भी है उसके ऊपर, और वो तो हमने डेवलपमेंट दी हुई है उसको, अजहर अली को दी हुई है। क्या बात है, पास जो है ना मतलब जिसकी अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक, जो खुद ही डेवलपमेंट के आदि है, जिन्होंने क्रिकेट सारी उम्र सिफारशी खेली, जिन्हें कैच नहीं करना आता था, जिन्होंने कभी गेंद के पीछे नहीं दौड़ना नहीं आया। आज मैं सुन रहा हूँ, बात सुन लीजिए, मुझे ये पता लगा हारिस रऊफ ड्यू टू सिर्फ आकिब जावेद की वजह से खेल रहा है। यह आपको बता दी बात मैंने, और आपने कहा बड़ी उम्दा बात, क्या अजहर अली साहब कब क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, छोड़े बड़े बात सुनिए, आप क्या करेंगे? प्लेयर मुझसे पूछे कि क्लब डेवलपमेंट क्या होती है, आपने क्या करनी है? आप तो किसी के आगे बोल भी नहीं सकते अजहर अली साहब, आपका क्या काम है? आप तो